Hello students, welcome to ASL English Club. I hope you are doing well. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे phone calls from some students that are learning English. आज इन स्टूडेंट्स के फोन कॉल्स लेकर स्पोकन इंग्लिश में कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना वो कर रहे हैं उसका स्टडी हम करेंगे. उनके प्रॉब्लम्स के स्टडी करने के बाद वी विल ऑफर देम सम हेल्पफुल टिप्स फॉर द सॉल्यूशन. इसीलिए स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. Perhaps you may get answers to some of your own problems in spoken English issues. Let's begin. Here we go. Hello. Hello, sir. Yes. I'm Kodeshwara from Andhra Pradesh. Hello, Kodeshwar. Thank you for calling ASL English Club. How may I help you? Sir, I really want to improve my English speaking skills, but I work for an institution that makes me a lot of time to learn, even this during lockdown also. Okay. I'm given lots of work to do. I get very tired to take care of my family needs also. So I get to no time for English learning. Please help me, sir, how to learn. Okay. Let's analyze your problem and see what's the best possible solution for you. Thank you so much for the great question you have given to us, Kodeshwar Rao. Thank you, sir. All right. What did we learn about Kodeshwar? Number one, he really wants to improve his English. He's very passionate. So, हमने कोटेश्वर जी के बारे में क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि he's a hardworking man. He's working for an institution. He gets tired. He takes care of his family needs. So no time to improve English. तो यहां पे there are two possibilities. What Kodeshwar may be missing to understand here. तो यहां दो पॉसिबिलिटीज हैं जहां कोटेश्वर शायद कुछ बातों को समझने में चूक रहे होंगे. The first thing is a priority in life. Whatever we feel is very important, we inevitably find a time for that. तो प्रिय, जो हमारी प्रायोरिटी होता है, यानी कि जिन चीजों को हम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, उन चीजों के लिए कहीं ना कहीं से हमें समय निकालना पड़ता है. For Kodeshwar, his job is a priority. His family is a priority. And that's a good thing. Friends, जैसे हम अपने उम्र में बढ़ते हैं, we get caught up with lots of responsibilities and we feel the pressure to make both ends meet. And इस प्रोसेस में क्या होता है, हम उस ऊंचाई तक पहुंचने से जो अपने आप को वंचित रख लेते हैं, because we are caught up with a lot of responsibilities. And that's why many people get stuck and they struggle the rest of their lives. जब आप अंग्रेजी सीखने की बात करते हैं, so it is not अंग्रेजी या नौकरी, अंग्रेजी या परिवार. आप कहते होंगे ना, मैं नौकरी छोड़ूं या इंग्लिश सीखना छोड़ूं, मैं परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ूं या अंग्रेजी सीखना छोड़ूं. It's not about English versus job. It's not about English versus your family. क्यों ना आप इस तरीके से समझें कि it is English for the job. So it is not English versus job or English versus family. क्यों ना आप ऐसे समझें कि it is English for a better job and a better job for a better family. इसीलिए जिम रॉन नाम के एक व्यक्ति ने यूं कहा कि work on yourself more than you do on your job. क्योंकि जब आप अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करते हैं और अपने आप को इंप्रूव कराते हैं, and when your caliber is improved, that's going to benefit your job.
एंड जब आपका जॉब बेटर होता है, यू गेट प्रमोशन, यू गेट मोर मनी एंड यू ब्रिंग स्माइल टू योर फैमिली. That's why improving yourself is very important. अपने आप को इंप्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किसी ने यूं कहा कि do something today that your future self will thank you for. आज ऐसे कुछ करें जिससे कल आप खुद ही अपने आप को धन्यवाद दोगे कि आपने ऐसे किया. So improving yourself is a priority. एंड जब आप अपने आप को इंप्रूव करने को एक प्रायोरिटी मान लेते हैं तो यू विल फाइंड टाइम फॉर इट. आज मैं आपको चैलेंज करता हूं. कैन यू गिव 15 मिनट्स अ डे? एंड डू यू नो 15 मिनट्स अ डे इज जस्ट 1% ऑफ योर 24 आवर्स. मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप यदि अपने पूरे दिन के सिर्फ 1% मात्र इंग्लिश सीखने के लिए एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक फुल डिसिप्लिन के साथ देंगे, यू विल सर्टेनली सी अ ग्रेट रिजल्ट. तो हर चीज जो उपलब्ध है आपके इंटरनेट में या यूट्यूब में या किताबों में, उन सबों को जस्ट डिवोर ना करिए, बट स्टिक टू 1 or 2 टीचर्स दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. एंड एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए, उनके पूरे इंस्ट्रक्शंस को रेगुलरली सुनकर उसके अनुसार फॉलो करने को. एंड इफ यू चूज टू स्टिक टू आवर चैनल एंड बी डिसिप्लिन्ड इन फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शन, मैं आपको आज वादा करता हूं कि आई विल स्टे विथ यू, आई विल हेल्प यू टू अचीव द गोल. राइट टू अस इन आवर कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. And let us engage ourselves. We would love to walk alongside and make sure you get where you want to get with your speaking caliber. So, सिर्फ 15 मिनट. Can you take that 15 minutes out of your busy schedule? शायद अर्ली मॉर्निंग आप दे सकते हैं. शायद मे बी आजकल तो ऑफिस नहीं जा रहे हो, लेकिन जब आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाने के समय पर, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू टेक, आप अपने ईयरफोन लगाकर सुन सकते हो. बट 15 मिनट्स यू डिवोट कंप्लीटली फॉर दिस स्पोकन इंग्लिश. शायद जब आप लंच ब्रेक ले रहे हो, उससे 15 मिनट्स निकालकर आप किसी जगह जाकर किसी फ्रेंड से बात करते हुए या कुछ ना कुछ करते हुए आप 15 मिनट्स डिवोट करें स्पोकन इंग्लिश के लिए. शायद आपके टीवी वॉच करने का समय 15 मिनट्स कट कर सकते हैं, या यदि आप वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं उसका 15 मिनट्स कट कर सकते हैं, यदि अभी फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया में चैट कर रहे हैं उसका 15 मिनट्स कट कर सकते हैं. रिमेंबर, यदि ये आपके लिए एक प्रायोरिटी है तो यू विल गेट दिस टाइम समहाउ, नॉट फॉर 1 or 2 days, बट आपको कंसिस्टेंट होना होगा, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, क्योंकि ए पर्सन विदाउट डिसिप्लिन कैन डू नथिंग. जिम रॉन नाम के आदमी ने फिर यह भी कहा था कि those who seek a better life must first become a better person. जो एक अच्छी जिंदगी की चाहत रखते हैं, उससे पहले उनको खुद को अच्छा बनना होगा. एंड डिसिप्लिन लाइफ, ए कंसिस्टेंट लाइफ भी एक बेटर लाइफ को दर्शाता है, ए बेटर पर्सन को दर्शाता है. कोटेश्वर राव के सेकंड जो कहीं पॉसिबल गलती हो रही होगी वो ये है, शायद वो एक रॉन्ग मेथड ऑफ इंग्लिश लर्निंग को अडॉप्ट करे होंगे अपने दिमाग में. तो जब कोटेश्वर राव आपको कह रहे हैं he does not have any time left in a day for English, what he has in mind, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? शायद वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अब इतना समय नहीं कि 1-2 घंटे के लिए किसी क्लास ज्वाइन कर सकूं, या 1-2 घंटे के लिए मैं कई वीडियोस को देखकर सीख सकूं या पढ़ाई कर सकूं, या किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ करके कंसंट्रेट कर सकूं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में. You know, in one of our previous videos हमने जो अपलोड किया, हमने एक ऐसे कहा था कि अंग्रेजी जीवन के लिए बनी है, जिंदगी अंग्रेजी के लिए नहीं है. So English is going to make your life better. इसीलिए अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको जिंदगी को अलग करने की जरूरत नहीं है.
Why don't you bring English back to your life rather than separating your life for English? Make English your best friend. Take him along everywhere you go. Koteshwar Garu, why are you thinking of learning English after getting back from your job? आप अपने नौकरी से वापस आने के बाद अंग्रेजी सीखने को क्यों सोच रहे हैं? क्या यह पॉसिबल है आपके लिए कि to take English to your English learning to your job at the institution? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने डेस्क पे बैठे और एक किताब निकालकर चुपचाप पढ़ें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वंचित रहें. No. I don't know what kind of nature of job you have. But you could plan to use English in everything you do at your workplace. यदि आप एक टीचर हैं, you have added advantage to practice your English with your students and staff. यदि आप एक अकाउंटेंट हैं, तो आप अपने अकाउंट्स को बनाते वक्त अपने अंग्रेजी को यूज कर सकते हैं. Wherever you may be working, you can use your work situation to improve yourself. We will come back with another video with some specific ideas about how to take English to your workplace in our future videos. अब जब आप ऑफिस से घर जाते हैं और अपने फैमिलीज के नीड में मदद करते हैं, कोटेश्वर गारू, व्हाट ऑल डू यू डू? शायद आप ग्रोसरी के लिस्ट बनाते होंगे. अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करिए. शायद अपने घर के काम करते होंगे. यू मे बी डूइंग योर हाउस होल्ड चोर्स. जब घर के काम कर रहे हैं, एक लाइव कमेंट्री दीजिए ना अंग्रेजी में. I am chopping vegetables. I am washing my hands. I am sweeping the floor. एक लाइव कमेंट्री दीजिए. यदि आप अपने बच्चों के साथ टीवी वॉच कर रहे हैं, तो why don't you switch into some English cartoons or any English channels that your children would also love and you would also get a chance to listen to? यदि आप घर में WhatsApp या Facebook में यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं, why don't you try to explain to them or talk to them about the day in English? Even when you're working in the kitchen, तो आप काम करते करते अंग्रेजी की कुछ बातों को सुन सकते हैं. Yeah, talk to yourself in English while working. So friends, wherever you are, take English along. जहां कहीं भी आप जाते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं, वहां पर अंग्रेजी को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह शामिल करवाइएगा. ये मत सोचिएगा कि मैं ये कंप्लीट करने के बाद किसी कोने में जाकर बैठूंगा और तब अंग्रेजी सीखूंगा. नो, एज लॉन्ग एज इंग्लिश इज ए फॉर्मल फ्रेंड फॉर यू, यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट. अंग्रेजी को फॉर्मल फ्रेंड मत बनाइए, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाइए, ताकि इन हर सिचुएशन वो आपके साथ चल सके एंड यू एक्सप्रेस टू हिम and it becomes very simple. So ये little daily task हैं. These little daily tasks will reinforce every day English words and phrases that we can use it. And the more you use it in your daily life, the more confident you will become in using those words and phrases with others. Thank you for being a part of ASL family. We pray for you to succeed in your life and career. If you have not, don't forget to subscribe to our channel and click the bell icon for the new videos updates. And also write in our comment box, and we would love to hear from you and walk alongside you to help you improve your English. God bless you.